Welcome class. Today we will discuss the topic menstrual cycle of chapter 3 of 12th class, that is human reproduction. So class, menstrual cycle, because it occurs in the throughout the reproductive time of the female, that's why it is called reproductive cycle. And because the changes mainly occur in the female ovary, that's why it is called ovarian cycle. तो क्लास होता क्या है, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो इट इज रेगुलरली अकरिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन फीमेल at interval of 28 to 29 days. तो क्लास 28 to 29 डेज का जो इंटरवल है, उस पर्टिकुलर इंटरवल में फीमेल बॉडी में होने वाले रेगुलर फिजियोलॉजिकल चेंजेस दे आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली इट अकर throughout reproductive phase. So it occurs throughout the reproductive phase of the female, and that reproductive phase means the duration throughout which the female remain fertile. So we can say it is the fertile phase of the female. It is the fertile phase. So class, the menstruation, the first menstrual which happen in the female body and the last menstruation. तो देखिए जो फर्स्ट menstruation होता है, तो जो फर्स्ट menstrual phase होता है, तो फर्स्ट टाइम जो menstrual होगा फीमेल बॉडी में, फर्स्ट menstrual phase it is called menarche, and it occurs at 10 to 12 years. So when a female is at the age of 10 to 12 years, the first menstrual phase, that is called menarche, occur in the female body. And from the first, अगर लास्ट की बात करें तो जो लास्ट menstrual होगा, जो लास्ट menstrual phase होगा, it is called menopause, and it occurs around 45 to 50 years. तो क्लास you will remember the fertility phase. तो पहला जो menstruation होगा, first menstrual is called menarche, and the last it is called menopause. 10 to 12 year menarche, and 45 to 50 year it is called menopause. तो 45 से 50 साल की एज तक एवरेज जो है पूरा होता है, उस टाइम पर फीमेल बॉडी के अंदर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पूरा होता है, एंड इट इज कॉल्ड मेनोपॉज. तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरोडेड endometrial lining mixed with blood and comes out through the vagina. So here the endometrial lining, तो यूट्रस का जो सबसे इनर लेयर है एंडोमेट्रियम कहलाता है. एंडोमेट्रियल लाइनिंग they eroded, which means they cast off, वो टूटती है. तो eroded means they cast off, means टूटती है, and it mix with blood के साथ मिक्स होती है, and then it come out through the vagina, वो vagina से बाहर रिलीज होता है. अगर ड्यूरेशन की बात करें, for how many days it run, तो देखिए ड्यूरेशन की बात हमने कर ली है, 28 से 29 डेज है. अगर हम हार्मोन की बात करें कि किस हार्मोन लेवल पर प्रोसेस की शुरुआत होती है, तो देखिए इट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ
it work under the control of the gonadotropins and the various ovarian hormone. तो क्लास हम गोनेडोट्रोपिन की बात करेंगे तो here we have two hormones FSH which is called follicle stimulating hormone and it is LH called luteinizing hormone. If we talk about the ovarian hormone, estrogen and progesterone. So two hormones from called gonadotropin which are called FSH and LH. Similarly, the two hormones estrogen and progesterone released from the ovary. So they are called ovarian hormone. So these hormones work and run the process called menstrual cycle. The menstrual cycle it occur. अच्छा होता कब है basically? It occur when I am talking about according to the pregnancy. So this cycle occur when the pregnancy is absent. देखिए अगर प्रेगनेंसी नहीं है, the time when pregnancy is not present, it simply means that the menstrual phase is run. It means the menstrual cycle start. अगर प्रेगनेंसी achieve है, if the pregnancy is there, it simply means the menstrual cycle is stopped and the absence of menstrual cycle mark the presence of pregnancy. So class we have studied अभी तक हमने पढ़ा menstrual cycle का introduction. अब हम बात करेंगे menstrual cycle के steps की. तो देखिए in menstrual cycle there are three main steps. The first one is the menstrual phase. The second it is the follicular phase. And third it is the luteal phase. So class these are the three steps which are present in the menstrual cycle: menstrual phase, follicular phase and the luteal phase. So class let's start the first phase called menstrual phase. So class in the menstrual phase what happened there? देखिए menstrual phase के अंदर क्या हुआ? So menstrual phase की अगर हम बात करें तो menstrual phase में होगा कि यहाँ पर हमारी जो endometrial lining है, endometrial lining it casts off and mix with blood. देखिए यहाँ पर एक वेजिनल डिस्चार्ज होगा. यहाँ पर क्या होगा? वेजिनल डिस्चार्ज. यहाँ पर देखिए वेजिनल डिस्चार्ज होगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो कि टूट जाएगी और ब्लड के साथ मिक्स होगी. एंडोमेट्रियल लाइनिंग कास्ट ऑफ होगी, ब्लड को मिक्स करेगी और वेजिना के थ्रू वो बॉडी से बाहर आएगी. दैट इज कॉल्ड वेजिनल डिस्चार्ज. देखिए मेंस्ट्रुअल फेज की जो शुरुआत होती है कि हार्मोन के अकॉर्डिंग है, तो याद रखेंगे दिस फेज अकर व्हेन हार्मोन लेवल. देखिए हार्मोन लेवल से हमारे में क्या है? हार्मोन लेवल दो थे हमारे पास, गोनेडोट्रोपिन एंड ओवेरिन. तो देखिए यहाँ पर क्या था कि हार्मोन लेवल क्या रहेगा हमारा? लो. इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुएशन फेज कब होता है. देखिए मेंस्ट्रुअल फेज की शुरुआत जब होगी जब फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोन कंसंट्रेशन लो होगा, हार्मोन लेवल लो होगा. इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन एंड ओवेरियन हार्मोन इट इज लो. तो हार्मोन लेवल लो रहेगा. अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ पर हम एक चीज पढ़ रहे हैं कि ब्लड मिक्स होता है एंडोमेट्रियम के साथ और लगातार वो रिलीज हो रहा है, वो वेजिना के थ्रू बाहर निकल रहा है. हम जानते हैं कि जब ब्लड रिलीज होता है तो ब्लड के अंदर प्रॉपर्टी होती है क्लोटिंग की.
तो क्या रीज़न है कि जो ब्लड है वो फीमेल बॉडी के अंदर कोएगुलेट नहीं हो रहा, जबकि वो फ्रीली मूव कर रहा है। तो आप याद रखेंगे कि जो ब्लड है वो क्लोट नहीं होता इन जेनिटल पार्ट, और वो ब्लड कोएगुलेट या क्लोट क्यों नहीं होता जेनिटल पार्ट के अंदर, जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, कह सकते हैं ट्रैक्ट। तो वो जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर क्यों कोएगुलेट या क्लोट नहीं हो पा रहा, इसका रीजन है कि यहाँ पर एक केमिकल प्रेजेंट होता है फाइब्रोलाइसिन। तो क्लास एक केमिकल यहाँ प्रेजेंट होता है फाइब्रोलाइसिन। तो इस फाइब्रोलाइसिन की वजह से ही जो ब्लड है वो जेनिटल पार्ट में क्लोट नहीं हो पाता। ठीक है, लास्ट पॉइंट टाइम की बात करें, कितने टाइम तक फेस चलता है, तो दिस पर्टिकुलर फेस रन अबाउट 3 to 5 days। तो मैक्सिमम इट रन फ्रॉम 3 to 5 days। तो 3 से 5 दिन जो है मेंस्ट्रुअल फेस चलता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रन करता है 3 to 5 days। तो क्लास जो हमारा पहला फेस था मेंस्ट्रुअल फेस, यू विल रिमेंबर इट्स वेरी सिंपल, एंडोमेट्रियल लाइनिंग कास्ट ऑफ एंड इट मिक्स विद ब्लड एंड पास थ्रू द वेजिनल रूट। अकर व्हेन होगा कब, जब हार्मोन लेवल लो होगा, चाहे वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हो या फिर वो ओवेरियन हार्मोन हो। ब्लड जेनिटल पार्ट के अंदर क्लोट, ब्लड जेनिटल पार्ट के अंदर क्लोट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर एक केमिकल है जिसका नाम है फाइब्रोलाइसिन, और जो टाइम है वो कितना है 3 to 5 days। अच्छा, इसके अलावा क्लास एक पॉइंट हो रहा है यहाँ पर कि जो टोटल क्वांटिटी होती है डिस्चार्ज की, तो टोटल क्वांटिटी जो होती है डिस्चार्ज की वो होती है 75 to 100 ml। तो 75 ml से लेकर 100 ml तक लगभग जो टोटल क्वांटिटी है जो वेजिनल डिस्चार्ज यहाँ पर पूरा होता है। तो क्लास मेंस्ट्रुअल फेस हमने पढ़ा अभी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग कास्ट होगी, 3 से 5 days का ड्यूरेशन है, और हार्मोन लेवल जब लो होगा तब हमारा मेंस्ट्रुअल फेस वर्क करेगा। So class, now we are discussing the second point. It is the follicular phase. It is also known as estrogen phase, or it is also known as the proliferative phase. So class, this is the second step of the menstrual cycle. In the follicular phase, as we know, अभी हमने क्या पढ़ा, we study that the hormone level is low. The hormone level is low here. हार्मोन लेवल लो होने पर ही मेंस्ट्रुअल फेज की शुरुआत हुई थी। Now the low hormone level it work on the hypothalamus. Hypothalamus release GnRH. GnRH means gonadotropin releasing hormone. तो क्लास ये जो GnRH है, it means the gonadotropin releasing hormone. So class, low hormone level stimulate करेगा hypothalamus को, hypothalamus GnRH रिलीज करेगा, and this GnRH work on this hormone. This GnRH actually work on the pituitary, we can say the master gland. It work on the pituitary gland, which is also known as the master gland. It work on the pituitary gland, and from the pituitary gland, थोड़ा सा बात करें कि मास्टर ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो GnRH वर्क करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज FSH। तो शुरुआत कहाँ से हुई, FSH से। तो देखिए हार्मोन लेवल लो है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस जो है हमारा वो GnRH रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा, एंड दिस
पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज FSH। तो क्लास यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है जो रिलीज हुआ है वो है हमारा FSH। तो यहाँ पर हम किसको फोकस कर रहे हैं? FSH को, विच मीन्स द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो नाउ द FSH, तो हम केवल फोकस करेंगे FSH को। अब देखिए FSH अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, हम FSH की बात कर रहे हैं। देखिए तो FSH की प्रेजेंस में क्या होगा कि 6 से 12 ओवेरियन फॉलिकल्स जो है हमारे, दे स्टार्ट टू प्रोलिफरेट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज। सो FSH की प्रेजेंस में 6 to 12 ovarian follicle proliferates, and when they proliferate, so they proliferate and the proliferation occur in a granulosa cell. तो 6 to 12 ovarian follicles proliferate होते हैं granulosa cell। देखिए जब follicle का डेवलपमेंट होता है तो follicle डेवलपमेंट के अंदर प्राइमरी follicle अपने ऊपर it make the layers of the granulosa cell plus theca cell डेवलप होते हैं, एंड नाउ दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। इसी तरह से सेकेंडरी फॉलिकल और ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल या थीका सेल को डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, और साथ ही साथ जब वहाँ पर आ जाती है एंट्रल कैविटी मीन्स टर्सरी फॉलिकल, तो जब वहाँ टर्सरी फॉलिकल आ जाता है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड टर्सरी फॉलिकल और द ग्रैफिन फॉलिकल। तो देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में 6 to 12 ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट प्रोलिफरेट करना शुरू करते हैं। ग्रैनुलोसा सेल दे इनलार्ज इन साइज, लगातार ग्रो करते हैं, थीका सेल डेवलप होता है और एंट्रल कैविटी क्रिएट होती है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड है हमारा ग्रैनुलोसा सेल, दिस ग्रैनुलोसा सेल सीक्रेट द नेक्स्ट हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन, एंड विद दिस एस्ट्रोजन इट आल्सो रिलीज इनहिबिन। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा हार्मोन आ चुका है एस्ट्रोजन। तो ग्रैनुलोसा सेल जब प्रोलिफरेट हो रहे हैं तो एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा। ग्रैनुलोसा सेल के प्रोलिफरेशन से हमारा मतलब है कि देखिए प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल, और इन सभी के अंदर हमारा फंक्शन करता है ग्रैनुलोसा सेल। अब ग्रैनुलोसा सेल डेवलप होते जा रहे हैं कुछ वीक्स का, लगभग 1 वीक या 1.5 वीक के आसपास जो लगातार डेवलप हो रहा होता है। तो उस डेवलपमेंट के टाइम पर जो ग्रैनुलोसा सेल डेवलप हो रहे हैं, ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो रहा है, ओनली 1 फॉलिकल मैच्योर। तो देखिए केवल एक ही ओवेरियन फॉलिकल, एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है, लगातार ग्रोथ को पूरा करता है, एंड दिस फॉलिकल व्हिच बिकम मैच्योर इज कॉल्ड ग्रैफिन फॉलिकल। इट इज कॉल्ड ग्रैफिन फॉलिकल, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो देखिए FSH की प्रेजेंस में 6 to 12 ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल बनते हैं जो कि लगातार एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे होते हैं। इन सभी से केवल एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है। उस मैच्योर फॉलिकल को, उस ग्रोइंग फॉलिकल्स को हम बोलते हैं ग्रैफिन फॉलिकल। ग्रैफिन फॉलिकल हमारा बन चुका है। अब देखिए दोनों हार्मोन आ चुके हैं हमारे पास in presence of FSH and LH, sorry, estrogen। देखिए दोनों हार्मोन आ चुके हैं एस्ट्रोजन और FSH। तो FSH और एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में जो ग्रैनुलोसा सेल है वो बनाते हैं LH रिसेप्टर। तो वो यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं LH रिसेप्टर को। LH रिसेप्टर बन चुका है, इट मीन्स जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का हमारा जो सीक्रेशन है उसकी शुरुआत होगी। तो देखिए हाई लेवल जो है एस्ट्रोजन का, क्योंकि एस्ट्रोजन लगातार निकल रहा है ग्रैनुलोसा सेल से, तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड LH। तो जब हाई लेवल बनता है एस्ट्रोजन का और LH का, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं LH सर्ज। तो यहाँ
यहाँ से एल एस सर्च की शुरुआत होगी, और एल एस सर्च जब शुरू होगा तो यहाँ से देखिए हमारा जो ग्रैफिन फॉलिकल है, ग्रैफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, जब ग्रैफिन फॉलिकल रप्चर होगा तो यहाँ से एग सेल, एग या ओवा जो है वो रिलीज होता है, और एग और ओवा के रिलीज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो व्हाट इट इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो क्लास एफएसएच और एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में ग्रैनुलोसा सेल एलएस रिसेप्टर बनाएंगे, हाई लेवल एस्ट्रोजन का, क्योंकि वो लगातार निकल रहा है ग्रैनुलोसा सेल से, फॉलिकल लगातार मैच्योर हो रहा है, तो ग्रैनुलोसा सेल ग्रो कर रहे हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, तो हाई लेवल जो है एस्ट्रोजन और एलएच का, एलएस सर्च कोस करेगा, एलएस सर्च होने से ग्रैफिन फॉलिकल ग्रोथ होकर रप्चर होगा, और जैसे ही वो रप्चर होगा वहां से एग या ओवा रिलीज होगा। द प्रोसेस बाय विच एग और ओवा इज रिलीज, द प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन की बात करें तो ओवुलेशन कब होता है, इट अकर इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट मींस अराउंड 14th डे। तो लगभग 14th डे के आसपास ओवुलेशन शुरू होता है, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से एग रिलीज हो चुका है, और ओवुलेशन के 2 दिन बाद, तो देखिए आफ्टर 2 days आफ्टर ओवुलेशन, द 2 day आफ्टर ओवुलेशन, 2 दिन ओवुलेशन के बाद जो है इट इज कॉल्ड फर्टिलिटी पीरियड, द टाइम when female is most suitable to receive the sperm। इस समय पर ही अगर स्पर्म फीमेल बॉडी में आए तो मैक्सिमम चांस जो है फर्टिलाइजेशन के वो बनते हैं, सो इट इज कॉल्ड द फर्टिलिटी पीरियड। तो दीज 2 days आर मोस्ट अनसेफ इफ द कपल और द पेरेंट्स नॉट वांट एनी चाइल्ड, इफ दे डू नॉट वांट एनी प्रेगनेंसी, सो दीज 2 days आर वेरी क्रूशियल व्हिच अकर आफ्टर द ओवुलेशन। सो क्लास अगर टाइम की बात करें तो दिस प्रोसेस लास्ट 5 to 13 days। तो ड्यूरेशन जो रहेगा इसका लगभग 5 से 13 days तक चलता है। सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट द फॉलिकुलर एस्ट्रोजन और द प्रोलिफेटिव फेज। जल्दी सुनिए, फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या था कि लो हार्मोन लेवल हाइपोथैलेमस को सप्रेस करेंगे, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच जो पिट्यूटरी पर वर्क करेगा, और पिट्यूटरी से निकलेगा हमारा एफएसएच। एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल को लगातार ग्रो करेगा, ग्रैनुलोसा सेल की लेयर बनेगी जो लगातार एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। एस्ट्रोजन ग्रैनुलोसा सेल डेवलप हो रहे थे, जो बढ़ता हुआ फॉलिकल है, फॉलिकल मैच्योर होता है, फॉलिकल मैच्योर होगा और वहां से ग्रैफिन फॉलिकल मैच्योर होगा, तब हम उसे कहेंगे ग्रैफिन फॉलिकल। ग्रैफिन फॉलिकल प्रेजेंस ऑफ एफएसएच एंड एस्ट्रोजन, एफएसएच और एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में ग्रैनुलोसा सेल जो है एलएच रिसेप्टर बनाएंगे। जब हाई लेवल होगा एस्ट्रोजन और एलएच का, उसे एलएच सर्च कहेंगे। एलएच सर्च होने पर ग्रैफिन फॉलिकल रप्चर होता है, और जैसे ही ग्रैफिन फॉलिकल रप्चर होगा एग या ओवा रिलीज होगा, प्रोसेस ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन जो है वो मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरा होता है लगभग 14th डे पर। फर्टिलाइजेशन ओवुलेशन के 2 दिन बाद जो है ओवुलेशन के नेक्स्ट 2 days जो होते हैं वो हमारे फर्टिलिटी पीरियड कहलाते हैं, द मोस्ट क्रूशियल पीरियड जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी का चांस रहता है। और इस प्रोसेस का जो एंड है, जो प्रोसेस है हमारा, इट रन फॉर द 5 to 13 days। तो 5 to 13 days में दिस प्रोसेस गेट कंप्लीट। ओके, द लास्ट स्टेप इट इज द ल्यूटेल फेज। तो थर्ड फेज की बात करेंगे। ल्यूटेल फेज इट इज आल्सो नोन एज सिक्रेटरी फेज एंड इट इज आल्सो नोन एज प्रोजेस्टेरोन फेज। तो देखिए सिक्रेटरी फेज के अंदर क्या होगा, अंडर एलएच इन्फ्लुएंस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकल रहा था क्योंकि एलएच रिसेप्टर बन गए थे। तो एलएच इन्फ्लुएंस के अंदर ग्रैफिन फॉलिकल जो है बचा हुआ है क्योंकि वो टूट चुका था, ओवा रिलीज हो चुका था। तो वो जो बचा हुआ ग्रैफिन फॉलिकल है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। इस पॉइंट को याद रखिए, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से ही रिलीज होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन नेक्स्ट हार्मोन। दिस प्रोजेस्टेरोन, अब देखिए प्रोजेस्टेरोन की हमें नीड क्यों है,
प्रोजेस्टेरोन इज नीडेड टू मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हेल्दी रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन नीडेड होता है टू मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अगर देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ है, इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम और ज़्यादा ग्रो करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम और ज़्यादा ग्रो करेगा, यानी कि और ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, यानी कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। और जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करेगा तो प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा निकलेगा, हार्मोन लेवल हाई रहेगा, और जब भी हार्मोन लेवल हाई रहेगा तो वहाँ पर एमसी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब्सेंस देखिए, तो इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हार्मोन लेवल इज वेरी हाई, द प्रोजेस्टेरोन लेवल इज वेरी हाई। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई है, और वो हाई लेवल क्या करेगा, इनहिबिट करेगा जीएनआरएच प्रोडक्शन को हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच प्रोडक्शन लो हो जाएगा। इट मींस हार्मोन कंसंट्रेशन फिर से लो होगा, और हार्मोन कंसंट्रेशन लो होगा तो क्या होगा, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ता जाएगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता जाएगा, हार्मोन लेवल हाई रहेगा, और हम जानते हैं कि अगर हार्मोन लेवल हाई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो गोनाडोट्रोपिन कंसंट्रेशन लो रहेगा, हार्मोन कंसंट्रेशन लो रहेगा, इट मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और ये हार्मोन का जो लो लेवल है हमारा एलएच और एफएसएच का जो लो लेवल है, वो क्या करता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम को कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस एल्बिकेन्स के अंदर, एंड दैट कॉर्पस एल्बिकेन्स इज फाइनली डीजेनरेट। ल्यूटल फेज टाइमिंग की बात करें, इट लास्ट फॉर अराउंड 14 डेज। तो लास्ट 14 डेज के अंदर ये प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन है तो एमसी रुक जाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लास अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं हमारे ओवरी के अंदर, कौन से चेंजेस हमारे यूट्रस के अंदर होते हैं, और क्या क्या इसके अंदर हार्मोन लेवल होते हैं। So class, this is the diagrammatic representation of the menstrual cycle. तो क्लास देखिए, हमने इस पूरे प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वो सभी चेंजेस जो यूट्रस के अंदर हो रहे हैं, वो सभी चेंजेस जो ओवरी के अंदर हो रहे हैं, हार्मोन लेवल, पिट्यूटरी हार्मोन का क्या लेवल है, और ओवेरियन हार्मोन का कौन सा लेवल है। तो देखिए सबसे पहले यूट्रस के अंदर देखते हैं कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो कास्ट हो रही है, ब्लड यहाँ से बाहर आ रहा है, मेंस्ट्रुएशन फेज की शुरुआत हो चुकी है 3 डेज तक। उसके बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन की जा रही है, फॉलिकुलर फेज आ चुका है, और फॉलिकुलर फेज के बाद जो हमारा ल्यूटल फेज है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग लगातार बढ़ती जाएगी एंड इट बिकम ग्लैंडुलर। तो यहाँ से क्या है, ये ग्लैंडुलर बनती जाएगी। ग्लैंडुलर मीन्स कि जो जायगोट आएगा वो आसानी से यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो सके। हार्मोन लेवल की बात करें, एस्ट्रोजन, देखिए स्टार्टिंग लेवल पर हार्मोन लेवल लो है, हार्मोन लेवल लो है, लेकिन ओवुलेशन के पास जब एलएच सच आएगा हार्मोन लेवल बिकम हाई। तो हाई हार्मोन लेवल एलएच एफएसएच, हार्मोन लेवल अगेन हाई। तो देखिए यहाँ पर जो 14th डे है, 14th डे पर क्या है, ओवुलेशन हो रहा है। ओवेरी के अंदर क्या है, फॉलिकल डेवलप होता जा रहा है, ये मैच्योर फॉलिकल आ चुका है हमारा, और मैच्योर फॉलिकल जो है हमारा, मैच्योर फॉलिकल रप्चर हुआ और यहाँ से क्या निकला हमारा, ओवुलेशन, ओवा रिलीज हुआ, ग्रैकन फॉलिकल है, तो ग्रैकन फॉलिकल रप्चर हुआ और ओवुलेशन से यहाँ से एग रिलीज हुआ। तो ओवुलेशन के समय पर देखिए एलएच और एफएसएच का लेवल भी हाई है, और साथ साथ एस्ट्रोजन लेवल भी हाई है। ओवुलेशन के बाद ग्रैकन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम फाइनली कन्वर्ट हुआ कॉर्पस एल्बिकेन्स के अंदर। अल्टीमेटली दिस कॉर्पस एल्बिकेन्स गॉट डीजेनरेट, वो डीजेनरेट हो जाता है। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल इनिशियली दे आर लो, एंड ड्यूरिंग द ओवुलेशन हार्मोन लेवल इज वेरी हाई एंड देन दे डिक्लाइन। ओवेरियन हार्मोन लेवल, इनिशियली द हार्मोन लेवल इज लो, देन दे राइज, हार्मोन लेवल राइज होंगे। और देखिए ल्यूटल फेज में क्या हुआ कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है, इसीलिए आप देख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन लेवल तेजी से मेंटेन हुआ,
तेजी से इंक्रीज हुआ और एस्ट्रोजन लेवल भी साथ साथ चल रहा है एंड फाइनली दे विल स्लो डाउन। यूट्राइन इवेंट की बात करें तो सबसे पहले मेनिस्टर होगा, एंडोमेट्रियल लाइन ब्रेक होगी, आफ्टर दैट इट स्टार्ट टू मेंटेन, वो धीरे धीरे मेंटेन होती है, मिडवे तक मेंटेन होती है एंड देन इट स्टार्ट टू बिकम ग्लैंडुलर। यहाँ पर अब एक सरफेस जो है हमारी ग्लैंडुलर बनना स्टार्ट करती है, बिकॉज एट दिस ग्लैंडुलर सरफेस द डेवलपिंग zygote or the embryo get attached. So class, this is all about the menstrual cycle, where we see how the egg cell is released from the ovary and this egg cell picked by the fallopian tube, fimbriary part, and it reached to the fertilization site. So class, this is menstrual cycle. Thank you class.